الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر، یہ سورہ کا نام ہے فاطر۔ پہلے آیت میں ہی فاطر یہ لفظ کا استعمال ہوا ہے، فاطر لفظ کا ذکر ہے پہلے آیت میں۔ فاطر کا معنی ہے بنانے والا۔ یہ سورہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مکی زندگی کا بیچ حصہ میں یعنی مڈل پیریڈ میں، مڈل سٹیج میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، جبکہ خلاف کرنے والوں کا خلاف اور بیروت بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا، اسی ٹائم یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ میں جو بتایا گیا اس کا مقصد یہ ہے، سورہ کا جو بیان ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت کرنا چیتابنی کے ساتھ، نصیحت کرنا چیتابنی کے ساتھ۔ کس بات پر نصیحت کرنا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا جو دعوت دے رہے تھے، اور اس دعوت کے مقابلے میں مکہ والوں اور ان کے سرداروں نے جو رویہ اپنا رکھا تھا، کیا رویہ تھا ان لوگوں کا؟ انکار کرنا، بیروت کرنا، دعوت کو روک دینا۔ یعنی یہ سورہ میں جو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کے راستہ پر تمہیں بلا رہا ہے تو اس میں تمہارا اپنا بھلائی ہے۔ ذرا سوچو تو اس میں غلط کیا ہے؟ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتا ہے کہ دنیا کے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اپنا عمل کا بدلہ ملے گا، یعنی آخرت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو اگر تم نہ مانتے ہو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں ہے، نقصان تو تمہاری اپنی کی ہے۔ یہ سورہ میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا گیا کہ آپ اپنا رسالت کا ذمہ داری، نصیحت کرنے کا حق پوری طرح ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ان کے رویے پر آپ دکھی نہ ہوئیے، اپنی جان نہ کھلائیے، بلکہ آپ اپنا دھیان، اپنا توجہ ان لوگوں پر لگائیے، کن لوگوں پر؟ جو سننے کے لیے تیار ہے، ایمان اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اور ایمان والوں کو بھی بڑی خوشخبری دی گئی تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائے، ایمان پر، سیدھے راہ پر وہ جمے رہے۔ اور آخر میں، سورہ کے آخر میں مشرکوں کو چیتاونی دی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ میں 45 آیت ہے اور 5 رکوع ہے۔ تو رکوع میں کیا ہے ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اسپیڈ سے ترجمہ پڑھتے چلیں گے۔ فرسٹ رکوع میں اللہ کا کریٹو پاور اور فرشتوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کا جو رحمت وہ کوئی نہیں روک سکتا، اور شیطان سے ہوشیار یعنی الرٹ رہنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ سیکنڈ رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ یا باطل پر حق کا غلبہ ضرور ہوگا، حق جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ تھرڈ رکوع میں بتایا گیا کہ تمہیں ہٹا کے تمہارا جگہ میں ایک نئے گروپ، ایک نئے قوم لانے میں اللہ قادر ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول یعنی ایک ہوشیار کرنے والا بھی ہے۔ فورتھ رکوع میں بتایا گیا کہ
کہ اللہ کا سچے ایمان رکھنے والوں کون ہے, उसके बारे में बताया गया है. और आखिरी रुकू यानी 5th रुकू में बताया गया कि अल्लाह का तरीका, अल्लाह का सुन्नत ना ही तो बदलते हैं, ना ही तो उसका कुछ ऑल्ट्रेशन होता है, ऑल्टर भी नहीं होता. अल्लाह तो तुरंत नहीं पकड़ते हैं, जो गलती हम करते हैं अल्लाह तुरंत नहीं पकड़ते हैं, अल्लाह तौबा करने का और इस्लाह करने का मोहलत देता है. तो ये रुकू वाइज ये सारे हैं. हम अभी सूरा के तर्जुमा के तरफ चलते हैं. आयत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफें हैं. कौन अल्लाह के लिए? जो सबसे पहले आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना रसूल बनाने वाला है. मखलूक में जो चाहे ज्यादा करता है. अल्लाह बेशक हर चीज पर कुदरत रखने वाला है. यानी ये सूरा भी पिछले सूरा की तरह ही अल्लाह की तारीफ से, अल्हम्दु से शुरू हुआ है, जो कि मक्की सूरा में हम देखते हैं तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये 3 चीज ज्यादा है. तो ये सूरा में भी पहले तौहीद के बारे में बताया गया है कि अल्लाह फतीरी समावात, इसका माने क्या है कि शुरू में पैदा करने वाला है. आसमान जमीन सबसे पहले बिना नमूना, कोई मॉडल नहीं था, अल्लाह ने बनाया. तो दोबारा जिंदा करना, आखिरत में दोबारा उठाना अल्लाह के लिए कोई कठिन काम नहीं है. और फरिश्तों को अपना रसूल बनाने वाला है. मखलूक में जो चाहे ज्यादा करता है, अल्लाह बेशक हर चीज पर कुदरत रखने वाला है. फरिश्तों यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल, इसराफील, इजराइल अलैहिस्सलाम, ये फरिश्तों को अल्लाह ने अपने रसूलों के पास जब जरूरत होता है उन लोगों को भी, फरिश्तों को भी रसूल बना के भेजते हैं. या दुनिया में कोई अहम काम करने के लिए भी ये फरिश्तों को भेजते हैं. और कुछ फरिश्तों का 2-2 पंख है, किसी का 3, 4 या ज्यादा भी है. मिराज में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हकीकी शक्ल में देखा था, तो कैसा देखा था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम का 600 पंख देखा था. तो यहाँ अल्लाह का कुदरत का बयान हुआ है. आयत नंबर 2, अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो उसका कोई बंद करने वाला नहीं, और जिस चीज को बंद कर दे उसके बाद उसको कोई शुरू करने वाला नहीं, और वही जबरदस्त हिकमत वाला है. अल्लाह का 2 सिफती नाम, अल्लाह का 2 अस्माउल हुस्ना का अजीज और हकीम इस आयत में है. यानी अल्लाह का रहमत सब के लिए है, लेकिन अल्लाह अगर किसी के लिए खोल दे और किसी के लिए बंद कर दे तो उसमें भी अल्लाह का हिकमत है, अल्लाह का हिकमत है. तो यहाँ पहले स्टार्टिंग में देखिए अल्लाह का तारीफ का बयान हुआ है, फिर अल्लाह का कुदरत, फिर अल्लाह का हिकमत बयान हुए हैं. यानी अल्लाह का तारुफ का बयान हो चुके हैं. इसके बाद अल्लाह लोगों को बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? आयत नंबर 3, ये लोगों तुम पर जो नेमत अल्लाह ने किए हैं उन्हें याद करो. क्या अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिज्क पहुंचाए? उसके सिवाय कोई माबूद नहीं, तो तुम कहाँ उल्टे जाते हो? खालिस तौहीद यहाँ बयान हो रहे हैं. क्या रिज्क कौन पहुंचाते हैं? अल्लाह के सिवाय जिन लोगों को तुम लोग पुकारते हो वो तो कुछ चीज का मालिक नहीं है. तुम्हारा खालिक, तुम्हारा रिज्क देने वाला तो अल्लाह है, तो तुम कहाँ उल्टे जाते हो? यानी खालिस तौहीद बताया गया है. तौहीद के बाद आगे जो आयत नंबर 4, उसमें फिर रिसालत आ गए. और अगर वो आपको यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाए, तो आपसे पहले के रसूल भी झुठलाए जा चुके हैं, और सभी काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं. रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नूह अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सबको बहुत मतलब विरोध का सामना करना पड़ा. उन लोगों को भी झुठलाए थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली दिया जा रहे हैं कि आपके पहले जो रसूल आए थे उन लोगों को भी झुठलाए जा चुके थे. फिर तौहीद हो गया, रिसालत हो गया. फिर आखिरत के बाद आयत नंबर 5 में, ये लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है. कौन सा वादा? आखिरत का वादा. तुम्हें दुनियाई जिंदगी धोखे में ना डाले, और ना धोखेबाज कौन है? शैतान. धोखेबाज तुम्हें गफलत में मशगूल करे, ना धोखेबाज तुम्हें गफलत में मशगूल करे. तो यहाँ भी हमें आखिरत के बारे में बताया गया है, और हम
हम यहाँ मुहस्बा करें, खुद को चेक करें कि हम गफलत में तो मुश्किल नहीं हो, हम अलर्ट हो क्या, खुद को भी चेक करें। आयत नंबर 6, याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन जानो, वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसीलिए बुलाता है कि वो सब जहन्नम में जाने वाले हो जाए। अल्लाह क्या फरमा रहा है आयत नंबर 6 में कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। अल्लाह बता दे रहे हैं अगेन, कितने बार तो कुरान में अभी हम लोग बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, पीछे भी कोई बार अल्लाह ने बताया कि शैतान दुश्मन है, खुला दुश्मन है। अगेन यहाँ अल्लाह बता रहे हैं शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन जानो। तो क्या हम समझते हैं शैतानी जो ख्यालात ये सारे हमें क्या हम समझते हैं कि अभी शैतान का वसवसा हमारा दिल में चल रहे हैं। जिस तरह इनविजिबल वायरस फैला हुआ है, हम देख नहीं पाते, इसी तरह शैतान का वसवसा, शैतान का कोशिश हमेशा हमेशा इंसान पर है। शैतान ने वादा किया अल्लाह से कि हम आपका बंदा को ज्यादा से ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाले हैं, सिवाय मुखलिस। जो मुखलिस है उस पर तो शैतान का कोई बस नहीं चलेगा। तो हम यहाँ अल्लाह हमें अलर्ट कर रहे हैं, तो हम जरूर अलर्ट रहे, शैतान का वसवसा, शैतानी ख्यालात को हम पहचाने, और जब भी लागे, जब भी हम समझे कि हमारा दिल में कुछ शैतानी ख्यालात आ रहे हैं, तो हम तुरंत आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ ले। जो लोग काफिर हुए उनके लिए सख्त सजा है, और जो लोग ईमान लाए और नेकी के काम किए उनके लिए माफी और अच्छा बदला है। जो लोग काफिर हुए, काफिर कौन, इनकार करने वाला, उनके लिए क्या है, सजा है। कैसा सजा, सख्त सजा। और इनके बरखिलाफ ऑन द अदर हैंड जो लोग ईमान लाए और नेकी के काम किए उनके लिए माफी और अच्छा बदला। तो यहाँ क्या बताया गया है, जो अजरुन कबीर, बड़ा बदला, बड़ा बदला का वादा किसके लिए है, उस ईमान पर जिसके साथ नेक काम भी होगा, नेक अमल भी होगा। ईमान प्लस नेक अमल, ईमान 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 लाए और नेकी के काम किए, उसके लिए अजरुन कबीर, बड़ा बदला उनके लिए। तो यहाँ हमारे लिए करने का काम या जो अमली पॉइंट क्या है, हम ईमान अपनाए और साथ साथ नेकी के काम भी करें। और इसमें क्या होगा, नंबर 1 माफी, नंबर 2 अच्छा बदला। तो हम भी जब, तो माफी का जरूरत पहले है, अच्छा बदला से पहले माफी का, क्योंकि हम माफ होकर, हम गुनाह से, तमाम गुनाह से पाक होकर, माफ हो जाएगा, हम पाक हो जाएंगे, तब ना हमें बदला मिलेगा। तो हम भी जब दुआ मांगे तो अल्लाह से पहले अपना गुनाह को इकरार करके माफी मांग ले, फिर जो अपना जरूरत का चीज वो पेश करे। आयत नंबर 8, आयत नंबर 8 से दूसरा रुकू शुरू हो रहे हैं। आयत नंबर 8, क्या वो इंसान जिसके लिए उसके बुरे काम खुशनुमा कर दिए गए हैं तो वो उन्हें अच्छा समझता है, क्या वो हिदायत पाने वाले इंसान जैसे है। यकीन करो अल्लाह जिसे चाहे भटका देता है और जिसे चाहे हिदायत देता है। तो आपको उन पर दुखी होकर अपनी जान को तकलीफ में ना डालना चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं उसे बेशक अल्लाह अच्छी तरह जानता है। तो आयत नंबर 8 से भी हम मुहस्बा करें कि हमारा कौन कौन काम हमें खुशनुमा लगता है, जो हकीकत में अच्छा नहीं है, हकीकत में नेकी नहीं है। आयत नंबर 9, और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बदलों को उठाती है, फिर हम बदलों को सूखी जमीन की तरफ ले जाते हैं और उससे उस जमीन को उसके मौत के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह दोबारा जिंदा होकर उठना भी है। यानी जो उसी टाइम मक्का वालों को जो इख्तिलाफ था, इतराज था किसमें, जो एक बार मर जाने के बाद, मिट्टी में मिट जाने के बाद दोबारा कैसे उठाया जाएगा। तो अल्लाह ने यहाँ बताया है कि जिस तरह बारिश के जरिए सूखी जमीन को हरी कर देते हैं, इसी तरह क़यामत के दिन तमाम मुर्दा इंसानों को भी अल्लाह जिंदा कर देंगे। बुखारी शरीफ का हदीस में भी है कि इंसान का पूरा जिस्म गल जाता है, सिर्फ क्या रहता है, जो रीढ़ की एक हड्डी का एक छोटा हिस्सा वो महफूज रहता है। और ये जो रीढ़ का हड्डी, इसी से उनकी दोबारा पैदाइश और तख्लीक भी होगी। ये बुखारी शरीफ का हदीस में है।
तो अल्लाह ने ये जिस तरह सूखा जमीन को जिंदा करता है, इसी तरह दोबारा उठाने में भी कादिर है। आयत नंबर 10, जो इंसान इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह के लिए ही सारी इज्जत है। तमाम पाक कलीमे उसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल उनको ऊंचा करता है। और जो लोग बुराई के दाव घात में लगे रहते हैं उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है और उनका ये मकड़ खत्म हो जाएगा। यानी जो इनकार करने वालों क्यों इनकार करते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नबी के हैसियत से एक्सेप्ट कर ले तो वो समझते थे कि इज्जत उनके लिए हो जाएगा और जो मौजूद सरदार उनका इज्जत कम हो जाएगा। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं सारी इज्जत तो अल्लाह के लिए है। और यहाँ दो चीज का बयान है, पाक कलीमे और नेक अमल। तो इज्जत दो चीज से मिलती है। क्या है? नंबर 1 कलिमा तैयब यानी ईमान, और दूसरा है नेक अमल, ईमान के साथ नेक अमल। जो नेक अमल ईमान को ऊंचा करता है। आयत नंबर 11, लोगों अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से फिर मनी से पैदा किया। यानी पहले आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से बनाया था, फिर बाकी इंसान को बाकी रखने के लिए इंसान की पैदाइश का क्या तरीका है कि मनी से मुताल्लिक कर दिया गया, रिलेटेड कर दिया गया। वही बताया गया ये आयत में कि अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से फिर मनी से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बना दिया है। औरतों का हमीला करना और बच्चे को जन्म लेना सभी उसके इल्म में है। और जो लंबी उम्र दी जाए और जिस किसी को उम्र घटे वो सब किताब में मौजूद है। अल्लाह पर ये बात बड़ी आसान है। अल्लाह का कुदरत का बयान हो रहे हैं। आयत नंबर 12, और बराबर नहीं दो समंदर, ये मीठा है प्यास बुझाता है पीने में अच्छा, और वो दूसरा खारी है कड़वा। तुम इन दोनों से ताज़ा गोश्त खाते हो और वो गहने निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि बड़ी बड़ी नौकाएं पानी को चीरने फाड़ने वाली उन समंदर में है ताकि तुम उसकी फसल की तलाश करो और ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। यानी जब भी अल्लाह का फजल तलाश हम करते हैं, मिलते हैं, तो हम शुक्रिया जरूर अदा करें। आयत नंबर 30, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कराता है और सूरज और चांद को उसी ने काम में लगा दिया है। हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहे हैं। यही है अल्लाह जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लाहुल मुल्क। वही है अल्लाह, तुम सबका रब, इसी का मुल्क है। और जिन्हें तुम उसके सिवाय पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, यानी इतनी हकीर चीज के भी मालिक नहीं, ना उसे पैदा करने पर वो कुदरत रखते हैं। तो अल्लाह को छोड़ के तुम क्यों दूसरे को पुकारते हो? ये सूरा मक्की सूरा बार बार तौहीद को साबित किया जा रहे हैं। आयत नंबर 14, अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर मान लिया कि सुन भी ले तो कबूल नहीं करेंगे, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का साफ नकार देंगे, डिनाई करेंगे, और आपको कोई भी अल्लाह ताला जैसा जानकर खबरें ना देगा। ये लोगों, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज तारीफ वाला है। यहाँ भी बार बार इस सूरा में अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह का सिफती नाम का भी जिक्र है। यह आयत में भी है गनी और हमीद। अजान हो रहे हैं, थोड़ा अजान सुन लेते हैं। आयत नंबर 16, अगर वो चाहे तो तुमको बर्बाद कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह के लिए कुछ कठिन नहीं, और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरों का बोझ नहीं उठाएगा। और अगर कोई भारी बोझ वाला अपना भार उठाने के लिए किसी दूसरे को बुलाएगा तो वो उसमें से कुछ भी नहीं उठा सकेगा, चाहे करीबी रिश्तेदार ही हो। तू सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकता है। किन्हें आगाह कर सकता है? नंबर 1, जो बिन देखे ही अपने रब से डरते हैं। नंबर 2, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। और जो पाक हो जाए वो अपने ही फायदे के लिए पाक होगा, और लौटना अल्लाह ही की तरफ है। यहाँ देखिए बोझ का बात है, बोझ, भारी बोझ, किसी दूसरे का बोझ कोई नहीं उठाएगा। तो हम भी यहाँ खुद के तरफ देख ले, हमारे ऊपर किस चीज का बोझ है? क्या गिबत का बोझ तो नहीं है? दिल तोड़ने का बोझ तो नहीं है? माफी नहीं करने का बोझ तो नहीं है? कौन कौन बोझ हम लदा हुआ हूँ वो भी थोड़ा मुहस्बा कर ले।
आयत नंबर 19, और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, और ना अंधेरे और ना रोशनी, और ना छाया और ना धूप, और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनवा देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। कितना वर्ण मतलब होशियार करने वाला ये आयत है। उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है, यानी इनकार करने वालों जो हक की बात, कुरान की बात, तौहीद के बात नहीं सुनते हैं, उसको कब्र में यानी मुर्दा के साथ कंपेयर किया गया। जिस तरह मुर्दों कब्रों में जो मुर्दा रहते हैं वो कोई बात सुनाई नहीं देते ना उनको, इसी तरह जिनका दिल इनकार करने में, कुफर में मुर्दा हो गया, उसको कब्र वालों के साथ कंपेयर किया गया। तो अल्लाह हमारा दिल को सलामत रखे, हमारा दिल में इस्लाम को दाखिल करे, इस्लाम के मुताबिक हम हमारा जिंदगी भी बसर करे अल्लाह। आप तो केवल डराने वाले हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहे हैं कि आप तो सिर्फ नजीर, डराने वाले हैं। हमने ही आपको हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कैसे भेजा? खाली हाथ नहीं, हक देकर। कौन सा हक? कुरान देकर है। और किस चीज के लिए भेजा? खुशखबरी सुनाने वाला। किस चीज का खुशखबरी? कि ईमान और नेक अमल के जरिए जन्नत का खुशखबरी, और डराने वाला किस चीज का? कि इनकार और बद अमल करने का अंजाम जहन्नम, उससे डराने वाला। और अगर ये लोग आपको झुटला दे तो जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी झुटलाया था, उनके पास भी उनके पैगंबर मुजीजे, सहीफे और वाजे किताबें लेकर आए थे। हाँ, पिछले कौम भी इसी तरह किया था ना, उनके पास भी क्या क्या पैगंबर क्या लेके आए थे? मुजीजा, सहीफे क्या होता है? छोटा छोटा किताब जिसमें ज्यादातर नसीहत रहते हैं। और वाजे किताब वो क्या है? जिसमें कंप्लीट शरीयत रहते हैं। तो पिछले नबी रसूल भी ये सारी चीज लेकर आए थे, तब भी छुटलाया था। आप भी ये सारी चीज लेकर आए हैं, लेकिन कुछ लोग तो छुटला ही रहे हैं। तो जिन लोगों ने झुटलाया, अल्लाह ने क्या किया? आयत नंबर 26, फिर मैंने उन काफिरों को पकड़ लिया तो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। क्या आपने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए कोई रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के कोई हिस्से हैं सफेद और लाल की, उनके भी रंग कोई है और बहुत गहरे काले, और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपाओं में भी कुछ ऐसे हैं कि उनके रंग अलग अलग है। अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं। कौन कौन बंदे डरते हैं? जो इल्म रखते हैं। हकीकत में अल्लाह ताला बहुत बड़ा माफ करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब का तिलावत करते हैं, और जो लोग अल्लाह की क्या करते हैं? नंबर 1 किताब का तिलावत करते हैं, नंबर 2 नमाज पाबंदी के से पढ़ते हैं, नंबर 3 जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से छिपे और खुले तौर से खर्च करते हैं, वो ऐसे कारोबार के उम्मीदवार है जो कभी ना नुकसान में ना होगा। तो यहाँ इस आयत से हम क्या मुहस्बा करें, क्या सोचे, क्या गौर फिक्र करें कि कारोबार करना है, ऐसे कारोबार की उम्मीदवार है। क्या हम अल्लाह से कारोबार में तैयार हो? क्या है कारोबार? जन्नत का सौदा। यहाँ बताया गया 3 चीज, किताब की तिलावत, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना, और छिपे और खुले खर्च करना। तो अल्लाह के साथ कारोबार करना, और ऐसा कारोबार करने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमेशा नेमत वाला जन्नत है। ताकि नेक्स्ट आयत में है, ताकि उनके बदले पूरी तरह से उनको दे, और उनकी अपनी फजल से और ज्यादा अता करे। बदला तो देंगे ही, बल्कि अल्लाह अपना फजल से और ज्यादा अता करेंगे। बेशक बड़ा माफ करने वाला कदरदान है, गफूरुन शकूर। बार बार अल्लाह का सिफती नाम आ रहे हैं। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के जरिए भेजी है, ये पूरी तरह से सच है, जो अपने से पहले की किताबों को भी तस्दीक करती है। बेशक अल्लाह अपने बंदों की पूरी जानकारी रखने वाला, अच्छी तरह देखने वाला है। फिर इस किताब, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब दिया है, ये सच है, बता दिया। फिर इस किताब का वारिस कौन है? आगे की आयत में, आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया, फिर इस किताब का वारिस हमने उन लोगों को बनाया जिनको हमने अपने बंदों में से चुन लिया।
यानी किताब से मुराद कुरान और चुने हुए बंदों से मुराद कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। यानी हमने इस कुरान का वारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर को बनाया है। वारिस, किताब का वारिस वो है। फिर कुछ तो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और कुछ औसत दर्जे के हैं और कुछ उनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकी में तरक्की करते चले जाते हैं। ये बड़ी फजल है। तो यहाँ 3 कैटेगरी बताया गया है। हम खुद को देखें हम कौन सा कैटेगरी में है। हमेशा फिर उनका फजल किया है आगे की आयत में। हमेशा रहने के बाग है जिनमें ये लोग दाखिल करेंगे, उसमें वो सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और कपड़े वहाँ उनके रेशम के होंगे। और कहेंगे, जो जन्नत में दाखिल होने के बाद क्या कहेंगे? कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया। बेशक हमारा रब बड़ा माफ करने वाला, कदर करने वाला है, गफूरुन शकूर, जिसने हमें अपनी फजल से हमारा हम ईमान अपनाए, नेक अमल जितना हो सका किया है, लेकिन अल्लाह ने अपनी फजल से हमेशा रहने वाली जगह में ला उतारा जहां ना हमको कोई कठिनाई पहुंचेगी और ना हमको कोई थकान पहुंचेगी। इसके बरखिलाफ ऑन द अदर हैंड क्या है? जो लोग काफिर है उनके लिए जहन्नम की आग है, ना तो उनकी मौत ही आएगी कि मर ही जाए और ना जहन्नम की सजा ही उनसे कम की जाएगी। हम हर काफिर को ऐसे ही बदला देते हैं और वो लोग उसमें चिल्लाएंगे कि हमारे रब हमको निकाल ले, हम अच्छे अमल करेंगे उस अमल के अलावा जो किया करते थे। अल्लाह ताला कहेगा कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसको समझना हो तो समझ सकता है, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था। तो मजा चाखो कि ऐसे जालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं है। अभी देखो हमारे पास भी रसूल भी आए हैं, किताब भी मौजूद है, हर एक लैंग्वेज में है। तो हमें अल्लाह ने अच्छा टाइम भी दिए हैं। तो अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारा भी इस्लाह करा दे। नेक्स्ट आयत, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है आसमानों और जमीन की छिपी चीजों का, बेशक वही जानने वाला है सीनों की बातों का। वही ऐसा है जिसने तुम्हें जमीन पर बसाया। यहाँ खलीफा वर्ड है, खलीफा यानी अल्लाह का काम भी करने का है ना, जिम्मेदार बनाया अल्लाह। तो जो इंसान इनकार करेगा उसके कुफर का बोझ उसी पर पड़ेगा और काफिरों के लिए उनका कुफर उनके रब के करीब गुस्सा ही बढ़ने की वजह बनता है और काफिरों के लिए उनका कुफर नुकसान ही को बढ़ाने का सबब होता है। आप कहिए कि तुम अपने मुकर्रर किए साझीदारों का हाल तो बताओ जिनको तुम अल्लाह के सिवाय पुकारा करते हो। यानी मुझको ये बताओ कि उन्होंने जमीन का कौन सा हिस्सा बनाया है, या उनका आसमान में कुछ साझा है, या हमने उनको कोई किताब दी है कि वो उसके सबूत पर मजबूत है। बल्कि वो जालिम एक दूसरे से सिर्फ धोखे की बातों का वादा करते आते हैं। यकीनी बात है कि अल्लाह आसमानों और जमीन को थमे हुए हैं और वो टल ना जाए, और अगर वो टल जाए तो फिर अल्लाह के अलावा कोई उनको थाम भी नहीं सकता। वो बड़ा सहनशील माफ करने वाला है। अगेन हलीमन गफूरा, ये आसमान जमीन को अल्लाह ही थमे हुए हैं। और इन काफिरों ने बड़ी पक्की कसम खाई थी कि अगर उनके पास कोई डराने वाला आया तो वो हर उम्मत से ज्यादा हिदायत हासिल करने वाले बनेंगे। फिर जब उनके पास एक पैगंबर आ पहुंचा तो उनकी नफरत में ही तरक्की हुई। दुनिया में अपने को बड़ा समझने के वजह से और उनके बुरे तदबीरों के वजह से, और बुरी तदबीर करने वालों की सजा उन तदबीर करने वालों को ही भुगतना पड़ता है। तो क्या ये उसी सुन्नत के इंतजार में है? कौन सा सुन्नत? जो पहले के लोगों के साथ होती रही है। तो आप अल्लाह की रीति में कभी बदलाव नहीं पाएंगे और आप अल्लाह की रीति को कभी तब्दील होती हुई ना पाएंगे। यानी अल्लाह का सुन्नत क्या है? अल्लाह का सुन्नत में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ना ही तो कोई अल्टर है। जो क्या है, जो ईमान के साथ नेक अमल करेगा उसका अच्छा होगा, अच्छा बदला मिलेगा, और जो इनकार करेगा, जो बद अमल करेगा उसका भी बदला जैसा करने ऐसा भरने। अल्लाह का सुन्नत में कोई बदलाव नहीं है, ना तो कोई तब्दील है। क्या ये लोग जमीन में
चले फिरे नहीं, जिसमें वो देखते भालते कि जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं उनका नतीजा क्या हुआ, ये आद समुद, इसका नतीजा जमीन में चल फिर कर देखो। हाँ, यही बताया गया। जबकि ताकत में ये लोग इनसे ज्यादा थे, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई चीज उसे हरा दे, ना आसमानों में और ना जमीन में। वो बड़ा इल्म वाला, कुदरत वाला है, अलीमन कदीरा। और अगर अल्लाह लोगों को उनके अमल की वजह से तुरंत पकड़ने लगता तो सारी जमीन पर एक जान भी नहीं छूटता। लेकिन अल्लाह उनको एक महदूद वक्त तक मौका दे रहा है। तो जब उनका वक्त आ पहुंचेगा तो अल्लाह अपने बंदों को खूब देख लेगा। यानी जो उन लोग समझते थे, क्या हमें भी लगता है कभी कोई भी कुछ गलत काम कर लिया तो तुरंत नहीं पकड़ा तो लगता है अरे क्या हुआ, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, अल्लाह क्या, अगर तुरंत अल्लाह पकड़ लेता तो कोई जान नहीं बचता, दुनिया में कोई बाकी नहीं रहता। अल्लाह तो वक्त देते हैं किस लिए, कि ताकि पलट आए, तौबा करे, पलट आए और अपना इस्लाह कर ले, माफी मांग ले, दुआ मांगते चले, तो अल्लाह टाइम देता है। तो हमें ये वक्त को, ये मोहलत को अच्छा से इस्तेमाल करने का है। ये सूरा से अगर हम एक भी करने का काम ले तो कौन सा, एक आयत नंबर 7 है, एक आयत नंबर 29 है, जो हमारा इख्तियार में है, हम कर सकते हैं। आयत नंबर 7 में किया था ईमान के साथ नेक अमल करना, ईमान के साथ नेक अमल करना। और आयत नंबर 29 में था कि किताब की तिलावत, नमाज में पाबंदी और हमारा जो कुछ है सदका खैरत करना। तो ये हमारा इख्तियार में है, हम कर सकते हैं, ये हम अमली पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं। ये था सूरा फातिर, मक्की सूरा, जिसमें तौहीद को साबित किया गया, रिसालत को भी, और बार बार अखड़ा से भी साबित किया गया, डराया गया कि अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है।